تو یاد رکھو یہ نام بچانے کے لیے نا آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. یہ نام اللہ اس وقت تک نہیں مانتا جب تک آپ نماز نہیں 5 ٹائم نماز کی پابندی نہیں کرتے. اللہ اس نام کو مانتا ہی نہیں ہے. تبھی اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کسی اور جرم پر اتنے بڑے کفر کا حکم نہیں لگایا جتنا نماز چھوڑنے پر لگایا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے. کوئی بھی گناہ ہو جاتا نا، زنا بھی ہو جاتا کسی سے، ہم سمجھتے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گیا؟ زنا ہو گیا. ہم سمجھتے تھے مسلمان ہے مگر اس سے کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا چوری کی وجہ سے. مسلمان ہے بھائی، ہاتھ کٹ گیا. مسلمان ہے بھائی، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، جو جرائم ہوتے ہیں دنیا میں. لیکن کہا فرمایا کہ ہم نماز چھوڑنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اسلام سے خارج سمجھتے تھے. کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے، کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. تو سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے اس کا جمال دیکھ کر، اس کا حسن دیکھ کر، اور اس وقت لوگوں کو سجدے میں لذت محسوس ہوگی، مزہ آئے گا. لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے مگر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی کمر اکڑا دی جائے گی، تختے کی بنا دی جائے گی. یہ وہ لوگ تھے یدعون الی السجود، جن کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا. وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر تختے کی نہیں تھی، یہ صحیح سالم تھے. تو اس پر پچھلے ہفتے تفصیل سے بیان شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادتوں میں سب سے زیادہ جو پسند ہے عبادت وہ نماز ہے. نماز عربی میں جسے صلاح کہتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی کسی کو جب کسی کام کے لیے بلاتا ہے، کوئی ذمہ داری لگاتا ہے تو ایک مرتبہ بتا دینا کافی سمجھا جاتا ہے. اناؤنسمنٹ ایک دفعہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی عبادتیں ہمیں دی ان میں ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. رمضان کا روزہ فرض ہے، کتنی دفعہ بتایا؟ 2 دفعہ بتایا، لیکن وہ اسی آیت کو ریپیٹ کیا ہے ایک ہی جگہ پہ. اس کے بعد دوبارہ نہیں بتایا گیا. حالانکہ روزے رکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. حج فرض ہوا ہے، ایک آیت میں اللہ نے فرض کیا، اس کے بعد اس آیت کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں. بس ایک دفعہ کافی ہے. اسی سے پوری دنیا صدیوں سے جو بھی مسلمان ہیں حج کرتے چلے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جسے بار 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 درجنوں بار قرآن میں بتایا گیا ہے، درجنوں بار. جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی، نماز اور زکوٰۃ بھی ساتھ میں. نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو پیسے خرچ کرنا جس کو روکڑا کہا جاتا ہے، اور نماز پڑھنا، یہ 2 اسلام کے ایسے لازم اور ملزوم حکم ہیں کہ جن کے بغیر اللہ آپ کے اسلام کو اسلام ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. انہیں کہا جاتا ہے شعائر اسلام میں سب سے بڑے شعائر. اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ اسلام کے شعائر میں سب سے بڑے شعائر کون کون سے ہیں، تو آپ نے جواب دینا ہے سب سے پہلا نماز، اس کے بعد زکوٰۃ. شاعر کیا ہوتا ہے یہ بھی میں بتا دوں. ہر قوم کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر مذہب کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے، ہر ملک کی ایک مخصوص پہچان ہوا کرتی ہے جس سے وہ دوسروں سے جدا ہو جائے. دیکھو انسان کی ایک مخصوص پہچان ہے، اس کا نام. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نام رکھو، کہ یہ نام اسے دوسرے انسانوں سے ممتاز اور جدا کرے گا، کیونکہ سب ایک جیسے ہیں نا. مثال کے طور پر نادرا والے یہ قانون بناتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہو اس کی ناک کا سائز، آنکھوں کا سائز رجسٹرڈ کروا لیں. یہ بتا دیں کیسی ہے ناک اور آنکھیں کیسی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے یہ الگ ہے اور وہ دوسرے الگ ہیں. یہ والدین بھی ایسا کرتے کہ ہمارے 6 بچے ہیں تو یہ والا چونکہ تھوڑی سی موٹی ناک ہے، وہ والے کی تھوڑی سی پتلی ہے، تو ہم اس کو ہم کہیں گے موٹی ناک والا اور اس کو کہیں گے پتلی ناک والا. یعنی صفات سے ہم بلائیں گے اور فرق کریں گے، یہ والا وہ یہ والا ہے، وہ والا نہیں ہے یہ، اور وہ والا ہے، وہ والا یہ والا نہیں ہے. کتنی ٹینشن ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی.
भाई हो सकता है तीसरा बच्चा पैदा होता उसकी भी मोटी नाक होती। अब मोटी में दरमियानी दर्जे की मोटी और ज्यादा मोटी, क्या हो गया? नादरा वाले भी टेंशन में, वो डाटा जब सर्च करते तो भाई 2 आंखों वाले कितने हो, तो सारे 2 आंखों वाले हैं। बड़ी आंखों वाले तो बड़ी में लाखों करोड़ों ऐसे आ जाते जिनकी आंखें बड़ी हैं। चाइना आंखें, छोटी छोटी आंखें, लाखों करोड़ हैं जिनकी चाइना वाले जैसे आंखें होंगी। तो सबसे पहले जो इंसान की पहचान है वो क्या है? नाम। भाई इसका नाम वसीम है, इसका नाम सत्तार है, इसका नाम गफ्फार है। और फिर नामों में भी एक दूसरे से फर्क करने के लिए वल्दियत डाल दी जाती है। ये सलीम भाई, ये भी सलीम, ये भी सलीम, लेकिन ये सलीम जो वसीम का बेटा और ये सलीम जो सत्तार का बेटा, वल्द सत्तार। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? लेकिन इसमें भी फिर कंफ्यूजन होती है। सलीम वल्द सत्तार बहुत से होंगे। भी मैं चंद दिन पहले किसी मजलिस में गया तो एक साहब आए, तारुफ आपका नाम क्या है? मैंने कहा तारिक मसूद। मैंने कहा आपका? कह रहे तारिक मसूद। बिल्कुल वही नाम, कर लो क्या करना है भाई। और चलें आगे, एक साहब का नाम भी तारिक मसूद, मेरा नाम भी तारिक मसूद। और जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उनका नाम मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती भी उनके शुरू में लगा हुआ है। तो कितनी कंफ्यूजन है ना। तो कुछ चीजें हमेशा ऐसी होती हैं जिनको देख के फौरन पता चल जाए ये वाला वो वाला नहीं। जैसे नामों में भी अगर कंफ्यूजन होगी तो ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा नादरा इससे ट्रेस करता है। ओ भाई ये अंगूठा दूसरे अंगूठे से नहीं मिलता। इसको जला भी दोगे ना, अगर जला दो, तेजाब फेंक के मिटा दो, दोबारा जो नई स्किन निकलेगी उसमें वही डिजाइन फिर बना हुआ होगा जो पहले था। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ने आपको दूसरों से मुमताज करने के लिए उसी स्टाइल में लकीरें दी हैं जो पहले आपके पास थी। अब अंगूठा ही कोई काट दे तो एक अलग बात है, क्योंकि लकीरें अंगूठे पे होती है ना। अंगूठा ही खत्म हो गया तो फिर क्या करोगे? तो ऐसी लकीरें फिर सिर्फ अंगूठे की नहीं, सारी उंगलियों की जिस तरह से हैं उसी तरह ही रहेंगी हमेशा ये। तो असल में आपकी जो पहचान है ना वो क्या है? ये अंगूठा। जब भी अंगूठे का तस्करा आता है मुझे वो सब्जी वाला याद आता है जिसके अंगूठे में 1 साल तक लेके बैठा रहा। यही सोचते थे हम कि इंसान की पहचान किससे होती है? अंगूठे से। तो उसने हमें यह कहा था कि हमेशा अपना पैसा खानदानी आदमी को दो जो तुम्हें फ्रॉड ना करे तुम्हारे साथ। तो मैंने कहा कौन है? कह रहे मेरे जैसा खानदानी होना चाहिए। तो मैंने कहा अपना आईडी कार्ड दोगे? उसने कहा जब चाहो ले लो। मैंने कहा देखो इस्लाम में हुक्म यह है कि स्टैम्प पेपर पे, यानी रिटर्न में सही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो स्टैम्प पेपर पे ये लिख के दो। स्टैम्प पेपर पे लिख लो। मुझे तो लग रहा था भाई बड़ा खानदानी हर चीज। तो उसने मैंने कहा अंगूठा भी लगा दो। उसने कहा जब चाहो, जितनी चाहो उंगलियों के अंगूठे। कई जगहों पे अंगूठे लगे हुए थे। जब वो पैसे लेके भागा है, कई दिनों तक उसके अंगूठे हम देख देख के वो किसी ने पहनाई, अब हमने उसको वापस पहनाई है। बड़ी शुक्र है वापस ले ली, अच्छा आदमी था। आज इतवार बाजार से बकरी खरीद के लाया था, उसने कहा गाबन है। तो आप क्या समझते हो कि आपने नमाज की तौबा कर ली, अल्लाह माफ कर देगा? अल्लाह कहेगा माफ कर दूंगा। माफ क्या करूंगा? टाइम पे पढ़नी थी, नहीं पढ़ी, ये जुर्म माफ कर दूंगा। लेकिन जो दैन आपके जिम्मे है वो कोई मुफ्ती या मजहबी स्कॉलर माफ नहीं कर सकता। उसमें हमारे पास अल्लाह की तरफ से दलील होगी। ये लोग जो कहते हैं ना कज़ाए उम्री की कोई दलील दो, इनसे बोलो माफी की दलील दो आप, कि बगैर पढ़े नमाजें माफ हो जाती है। तुम कहां से अल्लाह की तरफ एक ऐसी चीज की निस्बत कर देते हो जिसका अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है? कितना बड़ा जुर्म किया, नमाज को साकित कर दिया बगैर किसी दलील के। है भाई, देखो जिसका हक है उसको हक है ना कि वो साकित कर दे। मिसाल से बात समझाता हूं। आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिए और पी गए। आपने कहा था 1 महीने बाद दूंगा। भाई ये बच्चों को खामोश करवाएं ऊपर, ठीक है? आपने मुझसे 1 लाख रुपए कर्ज लिए। कर्ज किसका था? मेरा। आपने कहा 1 महीने बाद दूंगा। आप 1 महीने बाद नहीं दे रहे, तरसा रहे हैं, तड़पा रहे हैं। 6 महीने गुजर गए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि आजा, पकड़ाई में आएगा तो नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। और मैंने कहा अब तू 6 महीने बाद लेके भी आएगा ना, पैसे तो लूंगा लेकिन सजा दूंगा तुझे, क्योंकि तूने इतना डिले क्यों किया। आपने सॉरी कर ली 6 महीने बाद कि यार माफी चाहता हूं यार। अब जब आपने सॉरी किए, मैंने कहा चलो भाई अब ये कर्ज ले आएगा, अब मैं इस पे गुस्सा नहीं होऊंगा क्योंकि मैंने इसको माफ कर दिया। ये जो डिले किया ना, माफ कर दिया। तीसरा बंदा उठ के इसको जाके कहता है अब तू पैसे ना दे, अब तू पैसे मुफ्ती साहब के पैसे ना दे। अगला कहता है भाई क्यों नहीं दूं, एक तो मैंने डिले किया, अब भी मैं ना दूं। तो वो अगला बंदा कहता है भाई इसकी क्या दलील है कि तेरे जिम्मे मुफ्ती साहब के पैसे हैं? इस पे कोई हदीस, इस पे कोई कुरान की आयत के तूने अभी भी देने हैं? तो ये समझदार होगा तो क्या कहेगा, भाई ये माफ करने का हक उसको है जिसने पैसे दिए हैं, ये थर्ड पर्सन को बोलो नहीं है। तो अगर मुफ्ती साहब ने ऐसी कोई बात कही है कि जो डिले कर देगा तो मैं माफी कर दूंगा,
یعنی جو ٹائم پہ میرا قرضہ نہیں دے گا نا، اب اس کو میری طرف سے یہ سہولت ہے کہ صرف توبہ کر لے، قرضہ بھی ختم. اس سے بڑا مفتی دنیا میں کوئی بیوقوف دیکھا آپ نے جو کہے کہ جس نے میرے پیسے ٹائم پہ نہیں دیے اب وہ صرف سوری کرے گا، صرف سوری کرے گا تو وہ پورا ہی اڑا دوں گا میں اس سے قرضہ. تو اگر یہ سامنے والا جو 1,00,000 روپے کھا کے بیٹھا ہوا ہے نا یہ 2 نمبر ہوگا نا، تو ان مذہبی اسکالر کی باتیں اس کو فوراً سمجھ میں آئیں گی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ دو. لیکن 1 نمبر ہوگا نا تو وہ کہے گا اس کی کیا دلیل ہے کہ جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا ہے، اس کی دلیل. مفتی صاحب سے کوئی تحریر لے کر آؤ. قضائے عمری کے ساتھ یہی حشر کیا ہے آج کل کے مذہبی اسکالرز نے، اور آج کل کے مذہبی اسکالرز کو جنہوں نے اپنا باپ بنا لیا ہے ائمہ مجتہدین کو چھوڑ کر، ان لوگوں نے بھی یہی حشر کیا ہے. اللہ میاں نے کہا تھا نماز قائم کرو، فجر کی نماز فجر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے، ظہر کی ظہر کے ٹائم پہ ہونی چاہیے. لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں قائم کی، قضا کرتے رہے، 10 سال تک قضا کر کے اپنے اوپر ایک بوجھ کھڑا کر لیا. تو آپ کو خیال آیا کہ یار میں نے بہت بڑا جرم کیا، 10 سال نمازیں نہیں پڑھی، میں توبہ استغفار کروں. آج کل کے جو مذہبی اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ جو بیوقوف بناتے ہیں، جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے، سینس تو ہے ہی نہیں. میں بار بار کہتا ہوں یہ جو آج کل کے مذہبی اسکالر تمہیں مجتہدین سے ہٹا رہے ہیں نا قرآن و سنت کے نام پہ، خدا کی قسم یہ قرآن و سنت میں نہیں لے کر آ رہے، یہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. قرآن و سنت جو ایکسپلین پہلے ہو چکا ہے نا وہ آتھینٹک ہے، وہ مستند ہے. آج کل کے تلوں میں تیل نہیں ہے ان اسکالرز میں، یہ اتحاد امت کے نام پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ 10 سال ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی، اتنا بڑا جرم کیا، اللہ کا قرض اس کے اوپر. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا، اللہ کا قرض سب سے زیادہ اس لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے. آپ نے اللہ کا قرض اپنے اوپر لاد دیا. اب آج کل کے اسکالر میں سے کوئی اسکالر اٹھا، اس نے کہا کہ صرف سوری کر لو اللہ تعالیٰ سے، یہ 10 سال کی نمازیں کیا ہو جائیں گی؟ معاف. جب آپ ریلائبل مفتیان کرام کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی سوری کرنے سے یہ جرم معاف ہو جائے گا کہ آپ نے 10 سال تک پڑھی کیوں نہیں ہے، لیکن اللہ کا قرضہ معاف نہیں ہوگا. تو وہ اسکالر جو نام نہاد اسکالر ہے انہوں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا؟ ہے بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ معاف نہیں ہوگا؟ حالانکہ دلیل اس کی ہونی چاہیے کہ معاف ہو گیا ہے. کہ مفتی صاحب سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ 10 سال کی نمازیں معاف نہیں ہوں گی. مفتی اگر مفتی ہوگا تو کہے گا اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ نے وہ نمازیں معاف کر دی ہیں. لہذا جو اسکالر یہ بات کر رہا ہے نا، مفتی کہے گا کہ اس سے پوچھ کے آؤ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ سوری سے وہ ساری نمازیں ذمے سے ساقط ہو جاتی ہیں توبہ کرنے سے. کیونکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے وہ معاف کر دی ہیں، تو تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کیوں کر رہے ہو جو اللہ نے کہی نہیں ہے؟ کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دو گے تو میں نمازی ذمے سے ساقط کر دوں گا؟ کہیں لکھا ہوا ہے یہ؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کہیں ہے قرآن میں حدیث میں کہ تو 10 سال چھوڑے گا تو خالی سوری سے اس کا قرضہ معاف کر دوں گا؟ آپ خود قانون ساز بن گئے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ جی حرج بہت ہے 10 سال کی نمازیں پڑھنے میں، اور اسلام میں تنگی نہیں ہے. حرج جب ہے جب 10 سال کی نمازیں ایک دن میں ہو. 10 سال کی نمازیں 10 سال میں کر لو بھائی. 1 کروڑ روپے لے کے کوئی بندہ پی گیا نا، روزانہ پیسے لے رہا تھا بٹوے سے نکال کے، کھربوں روپے جمع ہو گئے. تو جب تک جس کے پیسے چرائے ہیں وہ معاف نہ کرے اور آپ کے پاس دلیل نہ ہو کہ اس نے معاف کر دی ہیں، کیا وہ کروڑوں روپے معاف ہوں گے اس بیس پہ کہ یہ حرج ہے ان کروڑوں کے ادا کرنے میں؟ کورٹ یہ کہہ دے گی کہ بھائی تھوڑے تھوڑے کر کے پے کر دو، ایک دم نہ دو. ذمے سے ساقط کر دینا یہ آج کل کے مذہبی اسکالر کا کی بہت بڑی جرت ہے، جو انہوں نے کس کی طرف نسبت کر دی؟ بغیر کسی دلیل کے کس کی طرف نسبت کر دی؟ اللہ کی طرف. اور ایسے جاہل ہیں، مطالبہ ہم سے کرتے ہیں کہ قرآن حدیث سے دلیل لے کر آؤ کہ 10 سال کی نمازیں قضا کرنا لازم ہے. بھائی جس نے معاف کی ہیں آپ اس سے دلیل لے کر آؤ. کہاں اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے معاف کر دی؟ قرضہ اللہ کا ہے اور معاف کون کر رہے ہیں؟ آج کل کے اسکالر. خوف بھی نہیں آتا خدا کا ان لوگوں کو، شرم بھی نہیں آتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور جب میں جذباتی ہوتا ہوں نا تو آج کل کے کچھ اسکالرز نے میرے خلاف مضمون لکھنا شروع کر دیا. مفتی صاحب کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں. ایسے مضامین اب بعض لوگوں نے میرے بارے میں لکھنا شروع کر دیے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو میرے معتقد ہیں لیکن کہتے ہیں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جس میں مفتی صاحب حد اعتدال سے بولو ہٹ جاتے. ایک عاملوں کے بارے میں مفتی صاحب حد اعتدال سے تجاوز کر لے، سارے عامل غلط، یہ تھوڑا مفتی صاحب زیادتی ہے. ایک 3 طلاق کے مسئلے میں نے کہا نا کہ اگر کوئی اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھ لے گا وہ زنا ہی ہے، بیوی حلال نہیں ہوگی. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تھوڑی کیا ہو رہی ہے؟ زیادتی ہو رہی ہے. اتنا بھی سختی نہ کریں. میں بتاتا ہوں ابھی. تیسرا یہ مسئلہ قضائے عمری. قضائے عمری
साकित नहीं होती जिम्मे से, इजमाए उम्मत के खिलाफ है, ये कोई दलील नहीं है। नमाज से बढ़कर इस्लाम में कोई हुक्म बोलो नहीं है। किसी मजहबी स्कॉलर ने फतवा दे दिया ना 10 साल की नमाजें, उससे बोलो ये तूने फर्ज की हैं या अल्लाह ने फर्ज की हैं? अल्लाह ने माफ कर दी है, बता भाई इसकी क्या दलील है तेरे पास? कर्जा अल्लाह का है और माफ कोई प्रोफेसर साहब कर रहे हैं या कोई स्कॉलर कर रहा है आज का। और चौथी, अदालती खुला। मैं जब कहता हूं ना अदालती खुला, जो आज का जो कानून गवर्नमेंट में बना हुआ है ये बिल इजमा बातिल है। इस पे भी कुछ स्कॉलर ने मेरे खिलाफ लिखना शुरू कर दिया कि मुफ्ती साहब खुला के मसले में भी एक्चुअली थोड़ा सा क्या हो रहे हैं, कंट्रोल से बाहर। इतना भी नहीं है। टॉपिक से हटके मैं थोड़ा इन चारों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ताकि पता चले कि ये एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हूं मैं, एतदाल पे हूं। देखो एतदाल किसे कहते हैं? जो चीज जैसी है उसको वैसा रखना। एक चीज काली है ना, एक आदमी कह रहा है ये सफेद है, मैं कहूं ये धक काली है भाई, इतनी काली है कि अंधेरे में नजर ही नहीं आएगी। लोग कहे मुफ्ती साहब थोड़ा एतदाल से काम ले। वो जब कह रहा है सफेद है, आप जब कह रहे हैं कि काली है, तो बीच का कोई पीला रंग कह दें आप इसको, तो ये एतदाल होगा? ये झूठ होगा भाई। जब 100% ब्लैक है, किसी भी जाविये से देखो ब्लैक है, तो उसको ब्लैक कहना ही एतदाल है। तो ये जो खुला का मसला है ना, खुला का, अभी एक नया क्लिप आया है कि मेरे खिलाफ फिर किसी ने, पुरानी आदत है उनकी, उनको चैन नहीं आता जब तक मेरी वीडियो लगा के रिएक्शन न करें ना। तो मैंने ये अदालती खुला का कहा ये झूठ है, बकवास है। इसकी बेस पे अगर कोई औरत कहीं और निकाह करती है वो जिना है, वो निकाह नहीं है। चंद कंडीशन ऐसी हैं जिसमें हम उस खुला को मोतबर मानते हैं, वो हैं, वो तो मैं बता चुका हूं। चंद कंडीशन ऐसी है, लेकिन अलल इतलाक कोर्ट के पास ये हक हो जाए कि औरत जब जाए कोर्ट उसको खुला की डिग्री पकड़ा दे। जैसे कि लॉ यही है, लॉ तो पाकिस्तान में ना, हजरत वीडियो ना बनाए, जो पाकिस्तान में लॉ है ना वो यही है कि जज पाबंद है कि वो खुला देगा। ये खुला कलदम है, इसकी कोई हैसियत बोलो नहीं है। इस पे मशहूर जमाना स्कॉलर ने अभी दोबारा मेरे खिलाफ क्लिप बनाया कि मिशकात की इतनी हदीसें और फलानी इतनी हदीसें हैं। एक हदीस मिशकात की या पूरे जखीरे हदीस में, मेरा चैलेंज है, खुदा के लिए मार्केट में ले आओ यार। हमारे कान तरस गए हैं, आंखें तरस गई हैं। कोई एक हदीस ऐसी नहीं है जिससे पता चलता हो कि औरत को तलाक का या निकाह खत्म करने का हक है बजरिया कोर्ट। शौहर जुल्म कर रहा हो ना मखसूस नौयत का, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, वो तो मैं भी मानता हूं। नॉर्मल कंडीशन में या छोटी मोटी बातों में एक औरत नहीं रहना चाहती, वो कह रही मैं नहीं रहना चाहती, यहां शौहर की मर्जी के बगैर औरत अलहदगी नहीं ले सकती। इस्लाम में निकाह में दाखिल होने का औरत के पास हक है, निकाह से निकलने का औरत के पास इस्लाम में राइट नहीं है। अब खवातीन को यह बात अगर समझ में नहीं आती, छोड़ दें इस्लाम को चेंज ना करें आप। इस्लाम चेंज नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? आप छोड़ दे भाई, हमें ये इस्लाम में लगता है ये जुल्म है औरत के ऊपर, तो ना लाओ, आप जाओ किसी हिंदू से शादी करो। आप उसके पास, उनके पास हर वक्त हक है भाई। जैसे हिंदू खुद तलाक दे सकता है, औरत भी जब चाहे अदालत से खुला ले सकती है। इस्लाम में ऐसा ही है। कोई स्कॉलर ये बात करता है ना कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप मेरे सामने बिठा दें उसको, ऑनलाइन ले आए उसको, मशहूर आदमी हो, और आड़ा तिरछा मशहूर होने के लिए बाज़ दफा आ जाता है, तो मैं बताऊंगा मिशकात में कितनी हदीसें हैं, बुखारी में कितनी हदीसें हैं, वो सारे मैं, इन कमबख्तों को तर्जमे तक नहीं आते हैं हदीसों के। अगर औरत के पास भी ये राइट होता है ना, कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है। कुरान हदीस तो पहले कॉमन सेंस होगी तो कुरान हदीस समझ में आएगा ना। कॉमन सेंस ही नहीं है, कुरान हदीस तो वैसे ही नहीं इन बेचारों के पास, और कॉमन सेंस भी नहीं है। और वो आजकल हमें बता रहे हैं कि अबू हनीफा इमाम शाफी को फॉलो ना करो, इन लोगों को फॉलो करो। कॉमन सेंस क्या कहती है कि मियां बीवी में और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फर्क क्या रह जाएगा अगर औरत के पास भी तलाक का हक हासिल हो जाए? फर्क क्या रह जाएगा? अरे मियां बीवी में, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में जब दोनों चाहे ब्रेकअप हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो ना। दोनों जब चाहे एक दूसरे को छोड़ दें, तो भाई मियां बीवी के तकल्लुफ की क्या जरूरत है? फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में औरत टाटा करके वैसे ही चली जाती है, यहां कोर्ट से कहेगी मुझे टाटा करवा दो, कोर्ट उसको पक्का ठप्पा लगा के डिग्री दे देगी। गर्लफ्रेंड में तो पक्का ठप्पा भी नहीं लगता, यहां तो पक्का ठप्पा लग जाएगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और मियां बीवी का फर्क ही खत्म हो जाएगा। इतनी सेंस इस बेवकूफों में नहीं है, और ये हमारे बाप बने हुए हैं, मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं ये लोग। मैं तो कहता हूं इस कौम के साथ सही हो रहा है। जैसे सियासी हुक्मरान जब कूटते हैं ना, मैं पकड़ के सही कूटते हैं भाई, वोट किसने दिया था? वोट भी तो मैं और आप ही देते हैं ना। तो ये जो मजहबी स्कॉलर मंजन बेच रहे हैं ना और उल्लू बना रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही हो रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि आपने कुरान और सुन्नत को समझने के लिए अबू हनीफा पे एतमाद नहीं किया। आपको लगा वो बेचारों को कुछ भी नहीं आता था, जो ताबीन तबा ताबीन के दौर के लोग थे, आपको खैर वो बेचारे मंजन बेच के चले गए। आपने इमाम शाफी पे एतमाद
नहीं किया, जिनको करोड़ों लोगों ने फॉलो किया है, आपने कहा उनको नहीं पता था। आपने इमाम मालिक पे एतमाद नहीं किया, आपने इमाम अहमद बिन हंबल पे एतमाद नहीं किया। जब इतने बड़े बड़े फुकाहा पे आपने एतमाद नहीं किया तो अल्लाह ने आपको इन मंजनों के हवाले कर दिया है कि ये व्यंजन बेचेंगे और तुम क्या करोगे, इनसे मसाइल पूछोगे। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये कहता हूं, ये खुला कलदम है, इसकी कोई 2 टके की हैसियत नहीं है। जज अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, किसी और की बीवी पे अल्लाह ने जज को इख्तियारात बोलो ना नहीं दिए हैं। अब खवातीन को ये पसंद ना आए तो छोड़ दें इस्लाम को। जहां इतने सारे करोड़ों काफिर हैं, चंद औरतें अगर जहन्नम में चली जाएंगी तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आजकल एक नया भूत ये सवार हो गया मजहबी स्कॉलर्स पे कि खवातीन को खुश करने के लिए उनके वो हुकूक बयान किए जा रहे हैं जो इस्लाम ने दिए नहीं है। फेवर लेना है इनको। जैसे कह दिया ना, औरत में सास की खिदमत नहीं है, शौहर की खिदमत नहीं है। अबे ना वो बच्चे पैदा कर रही है, ना वो शौहर की खिदमत करेगी, ना वो सास की खिदमत करेगी। कमाना उस पे वैसे ही लाजिम नहीं है, तो पेड़े खाने के लिए आई है घर में क्या? ऐसी बात करते हो जो तुम अपनी बीवी पे मुंतबिक नहीं कर सकते। तुम्हारी बीवियां कैसे घरों में रहती हैं? ना वो तुम्हारी माँ की खिदमत करेंगी, ना तुम्हारी खिदमत करेंगी, ना बच्चे तो वैसे ही पैदा नहीं हो रहे। एक आध होता है, उसके बाद बढ़ गया, बच्चों का प्रोग्राम सारा क्या हो गया, बढ़ गया। वो बात करो जो तुम खुद सोसाइटी में अपने ऊपर झील सकते हो। तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी को कह रही है पानी पिलाओ, और तुम्हारी बीवी आगे से कहते हैं सास की खिदमत कुछ पे वाजिब नहीं है। तुम्हारी गैरत कहां चली जाएगी उस वक्त? समझ में आ रहा है कि जापान से आया हूं, उससे में हूं, क्योंकि वहां मैंने खानदानी निजाम देखा है तबाह होते हुए। ये नहीं किस्म के लोग वहां भी ब्रॉड माइंडेड पैदा हुए, बेड़ा ही गर्क कर दिया पूरे सिस्टम का। जो इस्लाम ने औरत को हुकूक दिए हैं वो बड़े खानदानी हुकूक हैं। उन हुकूक की बात करो भाई, जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं। इस्लाम ने ये कहीं नहीं कहा कि तुम्हारी बीवी ना तुम्हारी माँ की खिदमत करेगी, ना तुम्हारी रोटी पका के खिलाएगी। इस्लाम ने कहा है भाई खर्चा तुम्हारे जिम्मे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत सिखाई है अपनी ज़ौजा की कि जहां से अम्मी आयशा बर्तन से मुंह लगा के पानी पीती, वहीं से आप भी मोहब्बत का इजहार करते। कभी आपने अपनी बीवियों को मारा पीटा नहीं है, हाथ नहीं उठाया, बर्दाश्त किया। ऊंच नीच हर घर में होती है। अपने साथ सफर में लेके जाते थे, दावत में लेके जाते थे। ये हुकूक हैं जो इस्लाम ने दिए। ये वाले दो भाई, तुम क्या सिखा रहे हो उनको कि जब मुंह उठाए वो अदालत में जा रही है? क्यों? औरत ने, इस्लाम ने औरत को राइट दिया खुला का। औरत को जो खुला का राइट दिया है, खुला एक एग्रीमेंट है। राइट का मतलब ये कि औरत अगर ये नहीं रहना चाहती तो शौहर से डिवोर्स का मुतालबा कर सकती है मेहर की मुआफी पे, कि मैं मेहर छोड़ती हूं, मुझे तलाक दे दो। इस मेहर छोड़ के तलाक लेने को खुला कहा जाता है। ये एग्रीमेंट है। जब तक शौहर राजी नहीं होगा, ये एग्रीमेंट दोनों तरफ से होता है। ये कुरान से भी पता चलता है, हदीस से भी पता चलता है, बुखारी मुस्लिम। और ये जो स्कॉलर ने कह दिया ना कि मिशकात पर इतनी हदीसें, मेरा चैलेंज है एक हदीस आप तर्जमा करके बता दो जिससे आपका वाला खुला जो आप साबित करना चाहते हो वो साबित हो जाए। तो मैं जब किसी पे इतना मजबूत दावा कर रहा हूं ना, तो फेंक नहीं रहा होता मैं बैठ के यहां। समझ में आ रही है बात? एक दूसरी बात आमिलों के बारे में। अभी हमारे एक दोस्त हैं हजरत, यानी क्या नाम है, मुझसे जूनियर हैं अगरचे काफी वो, लेकिन काफी पॉजिटिव काम कर रहे हैं। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हैं मुझसे काफी जूनियर, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव। उनसे किसी ने सवाल पूछा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब आमिलों के बहुत खिलाफ हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे गए हुए हैं। उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया कि भाई वो थोड़ा सारे गलत नहीं है, कुछ इनमें ठीक भी हैं। आमिलों के बारे में सारे गलत नहीं होते, कुछ इनमें बोलो ठीक। एक तो ये बात भी की कि भाई रुकिया तो इस्लाम में साबित है, तो मैं रुकिया का तो मैं मुनकिर नहीं हूं भाई। दम तो मस्जिद के इमाम से करवा लो। जिन चुड़ैल भूत भी किसी पे करोड़ों में किसी 2-4 पे आ सकता है, तो किसी भी नेक आदमी से दम करवा लो। और हजरत मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह वो आमिल नहीं थे। खुदा के लिए उनको बदनाम मत करो, वो आमिल नहीं थे। ये उनकी करामत थी कि कोई भी कुछ लिख के दे दिया करते थे। अल्लाह, उनको दुआ थी उनकी माँ की या किसी बुजुर्ग ने उन्होंने खिदमत की थी, गालिबन उनकी वालदा ने उनके लिए दुआ की थी कि तू किसी के लिए कुछ भी लिख के दे देगा, अल्लाह उसको पूरा कर देगा। तो अहलुल्लाह के साथ अलग मामलात होते हैं। वो आमिल नहीं थे। मैंने ये बात बयान में कही थी, उनके बेटे ने आके फिर जामे तो रशीद में बताया कि वाकई मेरे वाले साहब आमिल नहीं थे। ये करामत थी उनकी कि किसी को भी कुछ लिख दिया तो बस वो हो गया। करामत के तो फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो उनका भी बयान आया, अपने लिहाज से उन्होंने ठीक कहा, अपने लिहाज से, कि आमिल जो है एक्चुअली कुछ यूं भी होते हैं, कुछ 1-8% सही भी होते हैं, 1% भी सही नहीं होता। अगर मुझे एक बंदा आमिलों में सही मिल जाए ना, मैं अजायब घर में रखवाऊंगा, 1 करोड़ रुपए का टिकट लगाओ उसके ऊपर, क्योंकि ऐसी चीजें मार्केट में है ही नहीं। आप कह सकते हैं वो भी आपसे जूनियर हैं और अच्छा, आप खुद कह रहे हो कि भाई जामिया के टीचर हैं, उस्ताद हैं, तो क्या वो गलत बोल रहे हैं? वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि भाई इसका मतलब वो सही आलिम नहीं है। भाई इसका इल्म दीन से ताल्लुक नहीं है, समझ रहे हो?
उलमा से वो चीजें पूछें जिनका दीन के इल्म से ताल्लुक है, निकाह तलाक के मसाइल, विरासत के मसाइल। आमिल सही होते हैं गलत होते हैं ये कुरान और सुन्नत का मसला नहीं है, ये मुशाहिदे का मसला है। उनकी उम्र कम है, मेरे तजर्बा ज्यादा है, हमने एक भी नहीं देखा ढंग का, बहुत तलाश किया। और मैं जो कहता हूं सारे 2 नंबर होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है सारे बुरे होते हैं, इनमें कुछ नेक भी होते हैं, थोड़े से नेक भी होते हैं, लेकिन ऊपर की सेटिंग उनकी खराब होती है, पागल होते हैं, अमलियात कर करके खोपड़ी खराब हो जाती है, उनको जिन चुड़ैल भूत इसलिए नजर आते हैं क्योंकि खोपड़ी काम नहीं कर रही होती। आपकी खोपड़ी काम कर रही होती है, आप उनके पास बैठते हो तो थोड़े दिन में आपकी खोपड़ी भी क्या हो जाती है, आउट। फिर आप कहते हो यार मैं भी जब हजरत जी के पास गया था, एक चुड़ैल उन्होंने मुझे दिखाई, वहां से भूत दिखाया। अबे वो कुछ भी नहीं दिखा रहा, वो खुद पागल है, वो खुद दिमाग खराब हो गया उसका, फलीते पलीतों में पढ़ पढ़ के। तुम क्यों पागल हो रहे हो? उसके पास जाने से पहले कभी तुम्हें ये नजर आता था चुड़ैल और भूत तुम्हें नजर आते थे कभी? तो ये मंजन हमारे सामने, किसी आमिल के बाप में दम है, आए एक जिन चुड़ैल भूत मेरे सामने लाके दिखाए, बकवास है, ये मंजन है। मैं इतना कॉन्फिडेंटली जब इनके और मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद तो हमसे बहुत जूनियर हैं, इस बारे में मैं अपने अकाबिर को नहीं मानता। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में, मैं अपने बुजुर्गों को नहीं मानता इस बारे में। आप कह सकते हो अच्छा आप अपने बुजुर्गों से भी आगे निकल गए, भाई मैं मेडिकल साइंस से अपने बुजुर्ग से आगे जा सकता हूं, मैं ड्राइविंग में अपने बुजुर्ग से आगे जा सकता हूं, मैं दीन के इल्म में अपने बुजुर्ग से आगे नहीं जा सकता। दीन के इल्म की जहां बात होगी मैं अपने बुजुर्गों के सामने हथियार डालूंगा, भाई इनका इल्म हमारे इल्म से ज्यादा, इनका तकवा हमसे ज्यादा। आमिलों का ताल्लुक इल्म दीन से नहीं है, ये आमिल हिंदू पंडितों में मुसलमानों से ज्यादा होते हैं, पादरियों में ज्यादा होते हैं जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले। इसका ताल्लुक है मुशाहिदे से। ये उल्लू बनाने की मशीनें हैं, खुद कुछ बेवकूफ बन चुके होते हैं तो मंजन बेच रहे होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं मैं, कॉन्फिडेंटली, ऐसा नहीं है कि हवाई एकदम सुबह उठा तो आमिलों के खिलाफ तकरीर शुरू कर दी। कोई भी ढंग का नहीं है, इनसे दूर रखो अपने आप को। और अगर नहीं रखा ना तुमने, बातों में आ गए कि जी वो हजरत जी उनके, अबे मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा है कि इन लोगों ने उल्लू बनाया है। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद तो बेचारे अभी नए नए आए हैं मार्केट में, हमने बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा, इन आमिलों ने उनको उल्लू बना दिया। मैं बुजुर्गों का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, वो फिर बेअदबी है ना। बड़े बड़े बुजुर्गों को इन लोगों ने उल्लू बनाया, आप किस खेत की मूली हो? हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में, इनको समझने के लिए थोड़ा सा एतमाद होना चाहिए, फिर इनका पता चलता है ये बहुत। और ये सऊदी अरब की मिसालें, अब इमाम काबा को जिन चुड़ैल भूत, ये मंजन बहुत हम पहले देख चुके हैं। मैंने बड़े बड़े बेवकूफ देखे हैं जो इमाम हरमों के जाके जिन उतार रहे हैं, वो इमाम हरम को बेवकूफ बना रहे होते हैं। आप कह सकते हो वो इमाम हरम भी बेवकूफ बन गए, तो भाई जब उनकी फील्ड नहीं है तो बन सकते हैं वो। ये हो नहीं सकता कोई डॉक्टर इमाम हरम को गलत टीका लगा के आ जाए, इसका इमाम हरम से क्या ताल्लुक है? भाई डॉक्टर फराडी था, उसने गलत टीका लगा दिया, या अनाड़ी था। इन्हीं आमिलों का मंजन ही हर जगह बिक रहा है। और इसमें जहां भी मजहबी, मैं भी जापान गया ना, वहां जिन चुड़ैल भूत बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे किसी ने बताया कि हजरत ऐसा नहीं है, यहां भी होते हैं। मैंने कहा ये वहीं होते होंगे जहां इनके मजहबी रहनुमा बैठते होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो बुद्धिस्ट है ना। मैंने कहा जो इनके मंदिरों में जाता है ना बुद्धिस्ट, जापानी साइंसदान जाता होगा इबादत करने, उसी पे जिन भी आएगा, उसी पे भूत भी, उसी पे जापानी चुड़ैलें। क्योंकि ये मंजन चुड़ैल भूत का, जादू टोने का मजहबी तबके में बिकता है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो। जो मजहबी नहीं है ना, सेकुलर लोग हैं, उनमें ये मंजन बिकता नहीं है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में, क्योंकि जादू बहरहाल बरहक है। अब चूंकि मजहबी लोगों को है कि है, अब इस इम्कान की बेस पे कोई भी उल्लू बना दे। मिसाल के तौर पर एक बीमारी है जिसका वजूद ही नहीं है, उसमें उल्लू बनाना मुश्किल काम है। एक बीमारी है जो करोड़ों में किसी एक को हो सकती है, उसमें हो सकने की बेस पे उल्लू बनाना आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो इस बेस पे कि भाई नबी पे भी तो जादू हो गया था, तो फलाने पे क्यों नहीं हो? अबे फलाने पे हो सकने की बात नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ? ये इसने कैसे बता दिया कि इस पे जादू हुआ है? इसको कैसे पता चल गया? कोई भी उठ के बोलता रहे। तो इसलिए भाई ये मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि आमिल सारे बुरे नहीं होते। मैं मानता हूं कुछ नेक होते हैं, थोड़े से कुछ नेक होते हैं, लेकिन ऊपर की खोपड़ी खुदा की कसम उनकी सेट नहीं होती। वो खुद पागल होते हैं। कोई एक पागल लाओ तो मुझे बताओ, या अगर पागल नहीं है तो फ्रॉडी है, फिर वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है। देखो जो छोटे फ्रॉडी होते हैं उनको पकड़ना आसान होता है। काश ये बात आप लोगों की समझ में आ जाए, बड़े बड़े फ्रॉडियों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे हवाले ना दिया करो हजरत जी फलां, हजरत फलां के हम बहुत एतकाद है, लेकिन दीन के इल्म के मामले में, तकवे में हम उन पर एतमाद करते हैं। आमिलों के मंजन में हम उन पर एतमाद बोलो ना नहीं करते। बाकी जादू बरहक है, जिन्नात भी आ सकते हैं, करोड़ों में किसी एक पे आ जाता है, तो उसका इलाज ये है कि सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करो, या मस्जिद के इमाम या किसी नेक आदमी से दम करा लो, बस
इससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो मामला प्रोग्राम बढ़ जाएगा, वक्ती तौर पे ठीक हो जाओगे, फिर दोबारा चुड़ैल आएगी, फिर तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। फलीते पलीते, एक धागा एक यहाँ पर फलीता, इतना अजाब में मरोगे भी साले, उसी मुसीबत में मरोगे तुम। फलीतों पलीतों से जान नहीं निकलेगी तुम्हारी कभी। हमारे यार अल्लाह ने इतने हमें औलादे दी हैं, हमारे घर में बच्चे बीमार भी होते हैं, सेहत भी होती है। हमने तो कभी ना कोई फलीता, ना कोई पलीता, ना किसी आमिल, ना कि मैंने तो आमिलों को चैलेंज किया, तेरे बाप में दम में तो आ यार, 2-4 चुड़ैल भूत हमारे घर भी भेजना। ये मंजन उन्हीं लोगों को बिकता है जो इन लोगों को मानते हैं, और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ये हिंदुओं में भी है। ये मजहबी लोगों का मंजन है। सेकुलर लोग तमाम तर ऐबों के बावजूद इस ऐब से बचे हुए हैं। अंग्रेज सेकुलर है ना, वो जब रॉकेट भेजता है ना चांद पे, पड़ गया था ना एक दफा रॉकेट भेजा था, अगर वो पंडित जी के से दम करवा के या किसी मुस्लिम स्कॉलर से दम करवा के भेजता ना, तो कहता ये इस दफा चुड़ैल ने कुछ ऊपर जाके किया है। उनके सारे साइंसदान बकरे काट रहे होते वहां बैठ के। उन्होंने देखा यार जब तबाही हुई है तो कोई ना कोई लॉजिक होगी, उसकी लॉजिक को तलाश करो। मियां बीवी की लड़ाइयां हैं, मामला सही नहीं है, जब लड़ाइयां हो रही हैं तो इंसान के बच्चे बनो ना, देखो गलती किसकी है, कौन पहले बदतमीजी से बात शुरू करता है, फिर लड़ाई होती है। आमिलों ने ये धंधा ही सारा खत्म कर दिया। आमिलों ने बोला अपनी गलती की इस्लाह मत करो, असल में तुम्हारी सास ने तुम्हारे ऊपर चुड़ैल भेजी हुई है। बजाय इसके कि आदमी देखे कि नताइज गलत जो निकल रहे हैं तो मैं ठीक हो जाऊं या बेगम ठीक हो जाए, वो अपने आप बारे में सोचे ये क्यों झगड़ा हो रहा है ना भाई। वो तावीज रखा हुआ होगा बेल में, 15-16 साल पुरानी बात है। मुझे पता था ये बहुत नालायक है ना, लड़ रहे थे बदतमीज से, दोनों एक नंबर के, शादी से पहले ही बदतमीजी में मशहूर थे। जाहिर है शादी भी हो गई तो फिर तो बदतमीजी इंतहा को पहुंचेगी, लड़ाई झगड़ा ही नहीं खत्म हो रहे। लड़की का भाई चला गया किसी बुजुर्ग के पास, वो बुजुर्ग भी हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग समझे जाते हैं। अफसोस तो इस पर है ना, मैं 2 नंबर आमिलों के खिलाफ नहीं बोलता, ये जहन में रखो, मैं 1 नंबर के खिलाफ बोलता हूँ। ये भी मेरी बात को ना गलत ले जाते, 2 नंबर तो सब मानते हैं 2 नंबर है, जो 1 नंबर है वो भी 2 नंबर है, मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूं। क्या करें, बात से बात निकल। पहले ये सुना दूं ना, तो उसने बताया कि वो जो है ना, वो हमारे वो फला बुजुर्ग है, उन्होंने कहा इनके घर में एक बेल है, उसमें तावीज किया किसी ने। मैंने कहा उल्लू ना, किसी और को बनाना, किसी और को बनाना उल्लू। तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि तुम बजाय इसके कि अपनी बहन को समझाओ जो बदतमीजी कर रही है वो, या शौहर के रिश्तेदार मियां को समझाएं कि अगला गुस्से होता है तो तू थोड़ी देर के लिए इंसान का बच्चा बन जा, घर तो ऐसे ही चलता है ना। वो उसके घर में बेल ही नहीं थी, इत्तेफाक की बात ये है। लेकिन ऐसी अंधी अकीदत है ना इन कमबख्तों की, वो जितना मर्दी झूठ बोल दे, नहीं जी हजरत जी हैं, बनियान कमबख्त सूंघ सूंघ के औरतों के बता रहे, ये तो मैं 2 नंबरों की बात कर रहा हूं, औरतों के बनियान सूंघ के बता रहे होते हैं कि इस पे जिन्न है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी औरतों के बनियान मर्दों गैर मर्दों को सुंघाते हो यार। अपना पजामा सुंघाया करो जाके, इसको कोई मांगे ना तो अपनी बनियान लेकर आ, बोला ये मेरा अंडरवेयर है, ये अपनी नाक में घुसेड़। इन कमबख्तों का इलाज ही है। एक आदमी ने आमिल के साथ सही किया था, उसने कहा आपके बाल चाहिए, उसने जेर नाप बाल ले जाके दे दिए उसको। सही किया बिल्कुल। मुझे अच्छा नहीं लग रहा मस्जिद में ये बातें करते हुए, लेकिन तुम्हारे दिलों से मैं तुम्हारी जिंदगियां बचाने के लिए इन कमबख्तों की अकीदत निकालना चाहता हूं। दुश्मनी तो मैं मोल रहा हूं, तुम्हें थोड़ी कुछ कहेगा, दुश्मनी तो मैं मोल रहा हूं। तो बात आई थी दिमाग में, पता नहीं निकल गई, इतनी खानदानी बात आई थी। तो वो उसने कहा बेलों के ऊपर जो है ना, ये सारा आज का जो टॉपिक ही बढ़ गया सारा इन आमिलों के चक्कर में। सारा टॉपिक जो मैं कितना शुगर का और वो लेके चला था, वो टॉपिक तो बढ़ गए। ये भी जरूरी है भाई। तो इन आमिलों के मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, काइंडली, लेकिन ये आमिलों के बारे में किसी की बातों में ना, इन तिलों में तेल नहीं है। तो बात इतनी खानदानी थी यार, आमिल के बारे में थी, निकल गई दिमाग से। तो कोई भी हरम का इमाम का इलाज कर रहा है, ये सब मंजन होते हैं इन लोगों के। मैंने इमाम में फलाने का किया, तो मैंने ढिमकाने का किया, तो फिर तस्वीरें लगा लगा के हाँ याद आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा। देखो मेरे साथ भी किसी की तस्वीरें देखो ना, कि मैं उसके लिए दुआ कर रहा हूं, उसकी मस्जिद में खड़े होकर उसके लिए दुआ कर रहा हूं, तो वो आपसे अगर चंदा मांगता है तो इन तस्वीरों की बेस पे आप चंदा बोलो मत दो कि भाई मुफ्ती साहब इसकी मस्जिद में जाके दुआ। मैंने जब चंदे का बोलना होगा तो मैं अपने मुंह से फूटूंगा, क्योंकि इस तरह 2 नंबर लोग भी मुझे कैश कराते हैं कि भाई कहीं भी मस्जिद बन रही, मैं तो चला जाऊंगा दुआ मांगने। तो लोग कहते हैं मुफ्ती साहब इस मस्जिद में खड़े हुए थे तो इसका मतलब ये रिलायबल आदमी है। नहीं भाई, इसका ये मतलब नहीं है। हो सकता है रिलायबल हो सकता है 2 नंबर। चंद बातें फ्रॉडी लोगों की अलामतें, मजहबी फ्रॉडियों की, गैर मजहबी की तो वो तो आप जानते होंगे। जब मैं मजहबी लाइन का आदमी हूं ना, मजहबी फ्रॉडियों की चंद बातें। मदरसे का मोहतमिम भी हो और 4 बीवियां भी हो, फौरन एहतियात बरतो उससे। अच्छा,
लोग मुझे आके बता रहे होते हैं मुफ्ती साहब मेरी 4 वाइफ हैं, आपको मैं यकीन से कहूं मैं फौरी तौर पर खुश नहीं होता। मैं एकदम समझ जाता हूं कि ये पहली अलामत है 2 नंबर होने की। आप कहोगे यार मुफ्ती साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं? वजह उसकी मैं सबसे पहले पूछता हूं आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बात आ रही है समझ में? क्योंकि गरीब आदमी को 4 मिलती नहीं है, मिल सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ्रॉडी है, ऐसा ना हो कोई 4 रखी हुई हो तो आप बोलो फ्रॉडी है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मोहतात हो जाता है आदमी कि यार ये मिल कैसे गई तुझे 4, क्योंकि हमने तो अभी जाके हुई है हमारी, हमें पता है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और अब हम मशहूर हो गए और माली लिहाज से भी काफी स्टेबल हो गए पहले की निस्बत, लेकिन कैसे मिल गई? लोग मुझे आके बता रहे होते हैं पंजाब गया वहां मेरी 4 हैं। मैं एकदम थोड़ा सा ना ऐसे होता हूं, अल्लाह खैर करे यार। जी आप करते क्या है? मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। माशाल्लाह आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है। ये आपने भी ये इसी प्रोसेस से गुजरना है, तो प्रॉपर्टी के लिए भी तो पहले कहीं से पैसा आया होगा ना, बाप दादा से चलता आ रहा है ये बिजनेस आप। फिर जो कहते हैं ना मेरा मदरसा है, तो मैं और भड़कने लगता हूं, क्योंकि मदरसा से बड़ी नोट छापने की मशीन इस कायनात में IMF ने भी इजाद, बोलो अब चुप क्यों हो गए? IMF जो नोट छापता है ना, जो कर्जा देने के लिए, नोट तो IMF नहीं छापते ना, नोट तो मुख्तलिफ, अमेरिका समझ लो आप, सबसे ज्यादा दुनिया में डॉलर चल रहा है ना, अमेरिका के पास भी डॉलर छापने की ऐसी मशीन नहीं है जैसी मदरसा और यतीम खाना और ये ट्रस्ट, फाउंडेशन ट्रस्ट जितने भी हैं, चाहे कोई भी ट्रस्ट, इससे बेहतर नोट छापने की मशीन इस कायनात में आज तक किसी ने इजाद, बोलो, नहीं की है। बात आ रही है समझ में? आप कह सकते हैं मैं मदरसों के खिलाफ हूं, ना 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 ना, ना मैं 4 शादियों वालों के खिलाफ हूं, ना मैं मदरसे के खिलाफ हूं। मैं कह रहा हूं जब ये दोनों चीजें जमा हो जाएं तो कान बहरहाल खड़े हो जाते हैं। फिर आप पर लाजिम है कि आप तहकीक करें घुस के, कि काइंडली जरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मदरसा का जो आपका पैसा आता है, क्या आपके पास कोई ऑडिट का सिस्टम है? कहां से आता है, कहां खर्च होता है, टीचरों की तनख्वाहें, तो जरा आप बता सकते हैं? 2 नंबर आदमी यहीं पे आके क्या हो जाता है, बोलो, उलझ जाता है। क्या बताएं यार, चंद साल पुरानी बात है, किसी तरह एक साहब आए और मुझे कहने लगे कि टोपी दाढ़ी, मुफ्ती साहब मेरी भी 4 हैं आपकी तरह, करके मिले मुझे। मैं एकदम होशियार हो गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे। मैं डर गया थोड़ा सा, मैंने नहीं कहा कि 2 नंबर है, मैंने कहा आपकी 4 है माशाल्लाह। ऊपर से मैंने कहा, बड़ी खुशी हुई ना सुन के। मैंने कहा यार ये बंदा, क्योंकि ये मुझे कैश कराने के लिए आया था, तो मैंने पूछा आप करते हैं क्या? उन्होंने कहा मेरा मदरसा है। मैंने कहा 2 अलामतें तो जमा हो गई फ्रॉडी होने की। अभी भी यकीन नहीं है, ये खूब समझ लो, ये मतलब हरगिज नहीं है कि कोई मदरसे का मोहतमीम 4 शादियां कर ले तो वो 2 नंबर है, ना 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 ना। मैं तो एहतियात का हुक्म दे रहा हूं आपको, ऐसे मैंने देखे हैं, मैं मिला भी हूं, मदरसा चला रहे हैं, बहुत 1 नंबर लोग हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, चंदे का एक एक पाई का हिसाब है और उनका अपना बिजनेस भी है, या गरीब हैं, उनको गरीब लड़कियां ने उनसे शादी कर ली। ऐसा पॉसिबल है, किसी पे इल्जाम लगाना मकसद, बोलो, नहीं है। लेकिन जब मेरे से कोई मामला करेगा तो फिर तो मुझे हक है ना कि मैं घुसूं तहकीक में। तो आके मिले जी मेरी 4 है माशाल्लाह। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, इसको इतनी कम उम्र में 4 मिल कैसे गई? तो मैंने कहा आप करते क्या? उन्होंने कहा मदरसे का मैं मोहतमीम हूं। मैंने कहा ले भाई, फ्रॉडी होने की दूसरी अलामत भी बोलो, सामने आ गई। मैंने फिर बातों में पूछा, मैंने कहा वो कहते मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस होगा, लेकिन भाई मुझे यकीन नहीं था, भाई हो सकता है 1 नंबर आदमी हो। तीसरी चीज जब बातों में पता चली कि मैं अमलियात भी करता हूं और मैं दुबई और सऊदी अरब में हमारे बंदे जाते हैं अरबों के जिन निकालने के लिए। मेरे साथ साथी बैठे हुए थे, मैंने कहा तौरात, इंजील, कुरान पाक और जबूर 4 किताबों पे हाथ रख के कसम उठा के कहने के लिए तैयार हूं कि ये बंदा 100% 2 नंबर है, ये हलाल नहीं कमा रहा, ये मदरसे का पैसा भी मारता होगा दबा के। लेकिन मैंने अनाउंस नहीं किया उसके बारे में। चंद दिनों के बाद उसके साथ जब कहीं मेरी ऐसे नेट पे तस्वीरें वायरल नहीं हुई, किसी के पास गई तो एक बड़े मुफ्ती हैं कराची के, उनका फोन आया, मुफ्ती साहब ये बंदा बहुत बड़ा फ्रॉडी है, आप किसके साथ घूम रहे हो? नहीं आई मेरे ख्याल बात समझने। मुफ्ती साहब ये बहुत करप्ट आदमी है, बदनाम जमाना है। मैंने कहा हमने तो पहले ही 4 किताबों पे हाथ रख के कसम उठाने की कसम उठा ली थी। फिर एक और बंदे का फोन आया, मुफ्ती साहब इसके साथ माली लेन देन, बोलो, नहीं कर। ये मैं क्यों मिसालें दे रहा हूं कि जो शरीयत का फलसफा है वो अपनी जगह है, लेकिन मुआमलात क्या हैं?
देखो हमें किसी से बदगुमान होने की इजाजत नहीं है, लेकिन जब किसी मदरसे में चंदा दे रहे हो आप, तो ये तो पैसे का मामला हो गया ना, फिर बदगुमान होना फर्ज है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आप जब ज़कात दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो भाई फिर मोहतमिम साहब आपके पास इतना पैसा कहां से आया है? हाँ, हर एक ना आके पूछे, महल्ले वाले पूछ सकते हैं, मोहतमिम के जिम्मे बताए भाई मेरा ये बिजनेस अलग है और मदरसे का हिसाब किताब क्या है, अलग है। और ये भी याद रखो, ये गैर कानूनी है कि एक ही आदमी के हाथ में सारा हिसाब किताब हो। दुनिया में कोई ट्रस्ट, कोई फाउंडेशन ऐसी नहीं है जिसमें एक आदमी वन मैन शो हो, ये इलीगल है। एक साहब गए, मौलवी साहब बाहर मुल्कों में चंदा मांग रहे हैं, मुझे किसी ने कहा कि आपके जानने वाले हैं, आपका नाम, मैंने कहा मैं नहीं जानता भाई किसी को। तो कह रहे यार ये तो कह रहे इतनी बेवा, मैंने कहा भाई ये तो इलीगल काम है। ट्रस्ट जब बनते हैं 10-11 आदमी होते हैं, उनको पता होता है कहां से पैसा आ रहा है, उन 10-11 को आपको एतमाद में लेना पड़ता है। अगर कोई मदरसे का मोहतमिम ऐसा है, इधर से पैसा आ रहा है, उसी मोहतमिम की जेब से निकल के जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो बस बदगुमान होने के लिए इतना काफी है। इससे ज्यादा डिटेल में बोलो हम तुम तो सर पे चढ़ के थोड़ी देखेंगे क्या कर रहा है तू। पूरी टीम होती है, कोई ट्रस्ट होता है, रजिस्ट्रेशन होती है उसकी। देखो मस्जिद में जब पैसा आता है तो कमेटी होती है ना। अगर सदर यहां से पैसा ले, यूं जेब में रखे और एक पंखा लाके लगा दे, फिर वहां से 1 करोड़ रुपए लिए इधर जेब में रखे और जाके एक टाइलें लगा दी, तो बाकी कमेटी पूछेगी ना कि क्या कर रहे हो भाई, हमें क्यों नहीं बता रहे? हक बनता है कि नहीं बनता? तो मदरसे में भी यही हक बनता है, ट्रस्टों में भी यही हक बनता है। तो ये पूरी दुनिया में एक लॉ है और ये शरीयत के बिल्कुल मुताबिक लॉ है। इस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। वन मैन शो जहां भी चल रहा है, शरीयत आपको माली मामलात में बदगुमान होने की इजाजत नहीं बल्कि हुक्म देती है, खासतौर पर ज़कात, सदके और खैरात के मामलात में। हाँ, किसी को पर्सनली किसी पे जाती एतमाद है, वो फिर उन दोनों का आपस का मामला है। आप पे किसी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट है कि भाई ये बंदा एक नंबर है, तो आपको आगे पैसे पकड़ा देता है, आप किसी गरीब को दे देना, ये आपका आपस का मामला है। किसी को भी किसी पे ट्रस्ट हो सकता है। जहां खुले आम चंदे होंगे ना, खुले आम कोई ट्रस्ट चल रहे हैं, इदारे चल रहे हैं, वहां पर एक शख्स के हाथ में मामला नहीं हो सकता। समझते हो कि नहीं समझते? हमारी मस्जिद में 15 साल पुरानी बात है, एक डब्बा लगा हुआ था चंदे का, लोग जा जाके पैसे डालते। जब भी डब्बा खुलता तो पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, रसीदों में इमाम की तनख्वाह नहीं है, मौज़िन की तनख्वाह नहीं निकल रही। तो मुझे एक कमेटी के किसी जो सदर साहब, उन्होंने कहा भाई बड़ा मसला हो रहा है। मैंने कहा भाई ताला जो है ना 2 आदमी खोलेंगे लाजमी, जब तक 2 बंदों के अलग अलग चाबी नहीं होगी पैसे नहीं। जैसे ये हुआ है डबल से भी ज्यादा पैसा हो गया। कोई नमाजी भाई कमेटी ही के चुरा रहे थे पैसे, अल्हम्दुलिल्लाह। या कमेटी का नहीं होगा, कोई नमाजी अलग से किसी ने चाबी बनाई हुई होगी। भाई ये क्या बात है कि एक आदमी ताला खोल रहा है तो पैसे कम आ रहे हैं, 2 मिलके खोल रहे हैं तो पैसे बोलो ना ज्यादा आ रहे हैं। तो पैसों के मामलात में कोई भी आपको जब उल्लू बनाने की कोशिश करता है तो आप उल्लू बोलो मत बना करो। अब पूछो भाई, मैंने 20 दफा यहाँ इंतजामिया से कहा है खुद इनसे पूछे बगैर, क्योंकि बदगुमानी से रोकना खुद फर्ज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी ज़ौजा के साथ तन्हाई में खड़े हुए थे, एक सहाबी करीब से गुजरे, आपने उनको बुलाया, फरमाया मेरी ज़ौजा है। उन साहबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं आप पे थोड़ी शक करूंगा, मैंने यहाँ इंतजामिया से जब मेरे पास रीवो गाड़ी आई है, मैंने कहा आप ऐसा ना हो मेरे खिलाफ इधर उधर बातें करना शुरू कर दें। आप पूछो, मैं आपको बताऊंगा ये गाड़ी मेरे पास कहां से आई है। आप पूछो, मैं बताऊंगा मैंने 4 शादियां कैसे कर ली हैं, कहां से खिला रहा हूं, 4 घर कैसे चला रहा हूं। इनको मैंने खुद हक दिया है ताकि बदगुमान ना हो, क्योंकि शक हो सकता है ऐसा ना हो मुफ्ती साहब मस्जिद के नाम पे दाएं बाएं से चंदा लेके अपने मजे उड़ा रहे हो, दे दनादन शादियां कर रहे हो। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। इसको कहते हैं मामला जो आजकल मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट। और जिस मोहतमिम से पूछो ना, मदरसे का हो या मस्जिद का हो, कि तुम्हारे पास पैसा कहां से आता है, उसको अगर गुस्सा आ जाए ना, इसका मतलब 2 नंबर है। इसका मतलब क्या है, वो अगर है ना तुम कौन होते पूछने वाले। हाँ, ये नहीं कि हर चलता फिरता, महल्ले वालों की बात कर रहा हूं, जो महल्ले के जो भी संजीदा लोग होते हैं। ऐसा ना हो कि कोई भी 10 साल का बच्चा उठ के जाके पूछ रहे तुम्हारे पास पैसा कहां से आया, उधर से दूसरा आ रहा है तुम्हारे पास पैसा कहां से आया। ये तो फिर गैर अखलाकी हरकत है ना। जो भी महल्ले के जिम्मेदार समझदार लोग होते हैं, उनको ये हक है कि आपके इदारे में, इलाके में कोई मदरसा है, आप मोहतमिम से जाके पूछें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारिस में मेजॉरिटी ठीक लोगों की है हमारे मदारिस में, लेकिन फ्रॉडी लोग भी मदरसा बना लेते हैं। उलमा फ्रॉडी नहीं होते, ये खूब समझ लो। मदारिस के मोहतमिम फ्रॉडी नहीं होते, लेकिन फ्रॉडी लोग भी मदरसों के मोहतमिम बन जाते हैं, बल्कि मदरसे बना लेते हैं, क्योंकि नोट छापने का बेहतरीन तरीका है। तो मैं जल्दी जल्दी बात को समेट के मुकम्मल करूं। एक अदालती खुला के बारे में मैंने कहा बिल्कुल 100% क्या है गलत, तो ये कॉन्फिडेंटली कहा है, ये मैंने मजाक बोलो नहीं किया। एक मैंने ये कहा था कि आमिल सारे 2 नंबर होते हैं और जो 2 नंबर नहीं होते वो भी ऊपर की सेटिंग उनकी आउट होती है, ये मैंने बिल्कुल भी मजाक
بولو نا, نہیں کیا. اور مجھے اس کے ما لہو و ما علیہا سب پتا ہے کہ کون حضرت بزرگ ہمارے اکابر میں کون ہے جو عاملوں سے علاج کروا رہے ہیں, کون نہیں کروا رہے. وہ عامل, ان بزرگوں کی ہمارے دل میں بڑی عقیدت محبت ہے, ہمیں پتہ ہے عامل ان کو بھی الو بنا رہا ہے. تیسری چیز قضاء عمری کا تو بتا دیا میں نے, کوئی معاف نہیں ہوتی قضاء عمری. چوتھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو ابھی میرے خلاف نا کچھ اہل حدیثوں کا آ گیا, کسی نے میرے خلاف مضمون لکھا, مفتی صاحب 3 طلاق کے مسئلے میں بھی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہے. اصل میں جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اعتدال ہوتا ہے. علم ہے تبھی کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں کہ ککھ بھی نہیں ہے. 3 طلاقوں کو ایک کہنے کی کوئی دلیل بولو نہیں. یہ جو مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے نا, نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, ایسی ہی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کر لیا کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی ہے. تو جو اس حدیث کا جواب ہے نا, وہی اس حدیث کا بھی وہی جواب ہے. اور نبی کے دور میں ثابت ہے کہ 3 طلاقوں کو 3 مانا گیا ہے. اور ہمارے اہل حدیث حضرات جب ٹی وی پہ آتے ہیں حدیث کا ترجمہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. ایک مشہور اہل حدیث عالم ہے, جب ٹی وی میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, انہوں نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس سے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں. میں نے کہا یہاں ڈنڈی مار دی ہے انہوں نے, ایک مجلس کا لفظ اپنی طرف سے کیا کیا ہے, حدیث میں ایڈ کیا ہے. یہ کہیں بھی نہیں, حدیث میں علی الاطلاق ہے تو وہ منسوخ حکم ہے. جیسے متا نبی کے دور میں ہوتا تھا لیکن نبی کے دور میں منسوخ ہو گیا تھا, جابر بن عبداللہ کو نہیں پتا چلا. تو ایسے ہی نبی کے دور میں 3 طلاق ایک سمجھی جاتی تھی. نبی تھوڑی سمجھتے تھے, وہ صحابہ سمجھتے تھے جو زمانہ جاہلیت کے حساب سے, کیونکہ زمانہ جاہلیت میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا. پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا. یا پھر یہ حدیث رخصتی سے پہلے کے بارے میں ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے قبل ان یدخلوہا. اسی حدیث کی دوسری حدیث میں ہے کہ رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. تو ایک حدیث دوسری حدیث کو ایکسپلین کر رہی ہے نا. ورنہ بخاری میں بھی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, قرآن میں بھی ہے 3 طلاق, قرآن میں تو 2 مقام پر ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو یہ کانفیڈنٹلی ہم نے کہا ہے, ہم نے آپ کے ساتھ مذاق بولو نہیں کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ. تو اچھا, اس میں نے جب یہ کہا کہ اجماعی مسئلہ ہے, آخری بات, تو ایک جو ہے وہ اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ اجماعی کہاں سے ہو گیا. امام طحاوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو پھر انہوں نے یہ شو کیا کہ مفتی صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بھائی جان ہمیں پتہ ہے, امام طحاوی کے قول کا بھی پتہ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. امام طحاوی نے لکھا ہے اپنے دور میں کہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. پھر امام طحاوی نے دلائل دی ہیں کہ ان کا قول غلط ہے, اور آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ اجماع سے ثابت ہے کہ 3 ہوتی ہیں. کیا مطلب, امام طحاوی سے پہلے اجماع تھا کہ 3 ہوتی ہیں. امام طحاوی کے وقت میں کچھ لوگ اس کے قائل ہوئے کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو چکا ہوتا ہے, اب اس کی مخالفت کالعدم ہوتی ہے شریعت میں. تو پہلے اجماع ہو چکا ہے صحابہ کے دور میں اس پہ. تو یہاں اہل حدیث اس مسئلے میں ٹو دا پوائنٹ بات کبھی نہیں کرتے. کبھی مفسرین کے حوالے لے آتے ہیں, کبھی فلاں کے حوالے, کبھی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس سے 3 کو ایک کہنا بھی ثابت ہے, عبداللہ بن عباس سے قطعاً 3 طلاقوں کو ایک کہنا ثابت نہیں ہے. کوئی ہے تو ہمارے سامنے لے کر آؤ, ہم اس کا جواب دیں گے. تو کخ بھی نہیں ملتا اس میں. تو اس لیے, اور یہ جو امام طحاوی نے لکھا ہے نا کہ بعض لوگ اس کے قائل تھے کہ 3 ایک ہوتی ہیں, تو بعض سے اہل سنت بھی ہیں, کچھ شیعہ